پیش ہے ایگلائز JNK کی اگلی پیشکش فیضان قیوم کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان فیضان قیوم ایگلائز JNK میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ ایگلائز JNK کی کوشش جاری اور انشاءاللہ آگے بھی جاری۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹرنیٹ باعث رحمت یا زحمت۔ ایک بار پھر ہماری کوشش ہمارے مستقبل کا معمار ایک ایسی راہ کی اور چل پڑی جس سے ہمارے معاشرے کا حال اور مستقبل دونوں میں چار چاند لگ جائے۔ ساتھ آج کے اس تیز رفتار دور میں جہاں انٹرنیٹ کے مفید استعمال کے بنا زندگی جیسے پیرالائز دکھائی دے رہی ہے، وہیں دوسری اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال اسے اور پیرالائز کرتا جا رہا ہے۔ اس ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں، ملاتے ہیں ہم آپ کو اپنے مہمانوں سے۔ ہمارے مہمان ہیں زبیر حسن ریشی جو کہ کچھوا مقام سے تعلق رکھتے ہیں، گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول باگورہ میں 10ویں جماعت کی تعلیم، اور ہمارے ساتھ ہیں باسط احمد بٹ جو کہ پلہالن پٹن سے تعلق رکھتے ہیں، 8ویں جماعت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسپرنگ ڈیلز پبلک اسکول پلہالن سے۔ میں آپ دونوں کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو جاننا چاہیں گے ہم زبیر ریشی سے۔ زبیر ریشی، سوشل میڈیا کے ذریعے سماج پر کون کون سے مثبت اثرات مرتب ہوئے؟ زبیر ریشی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مسٹر فیضان سر کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں بلا کر مجھ سے ڈیبیٹ کروائی۔ فیضان صاحب نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سماج پر کون کون سے پازیٹو امپیکٹس پڑے ہیں، جس کا جواب میں یوں دینا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سماج پر بہت سے پازیٹو امپیکٹس پڑے ہیں، مثلاً اسپیڈی کمیونیکیشن، جیسے ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت جلد رابطہ بنوا سکتے ہیں۔ مثلاً ڈیورنگ دس پینڈیمک ہم اپنے گھروں میں قید ہو کے رہ گئے اور لوگوں سے ملنا جلنا ہمارا ٹوٹلی بند ہو گیا، لیکن جو یہ سوشل میڈیا ہے اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم گھر بیٹھے اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، حتیٰ کہ ساری دنیا کا حال جان سکے۔ دوسرا پوائنٹ میں اس طرح دینا چاہتا ہوں، یہ اویئرنیس کریٹ کرتا ہے۔ اسی طرح مثلاً ڈیورنگ دس پینڈیمک ہمیں کورونا وائرس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں اس قابل بنایا گیا کہ ہم کورونا وائرس کے متعلق ہر کوئی جانکاری اپنے پاس پہنچا سکے۔ تیسری جو پازیٹو امپیکٹ ہے اس سوسائٹی پہ، وہ میں اس طرح بتانا چاہتا ہوں کہ کمیونیکیشن، ہم کمیونیکیشن کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ، وہ بھی بہت کم ٹائم میں، اور ہم اس سے یہ بھی ہمیں پازیٹو امپیکٹ پڑتا ہے کہ ہم بزنس پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً 9.1 بلین پیپل جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں پریزنٹلی، اور ہم اس پہ اپنے جو بزنس پرپز ہے اس کے لیے ایڈورٹائز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہر ایج گروپ تک پہنچتا ہے اور ہر ایج گروپ کے لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو یا 60 سال کا بوڑھا ہو۔ تیسرا میں ایجوکیشن پرپز کے لیے بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ مثلاً آج اسکول سارے بند ہیں، ٹیچرز کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے آن لائن لیکچرز بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ اس سے بچوں کو بہت سارے فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ ہم اسکول نہیں جا سکتے، لیکن ہمارا جو سلیبس ہے وہ کور ہو رہا ہے بائی دس سوشل میڈیا۔ نوبل کاز کے لیے بھی ہمیں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہم نے ایک NGO بنا لیا، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، جو لوگوں کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس سے ہم اپنے موقف لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے NGO کا موقف کیا ہے اور لوگوں کے لیے ہم لوگوں کو اس سے کیا فائدے پہنچا سکتے ہیں۔ تیسری اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈپریسڈ پیپلز ہیں، جو اپنی زندگی سے محروم ہو چکے ہیں، ہم ان کو صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں۔ جو موٹیویشن اسپیکرز ہیں وہ موٹیویشن ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور جو ڈپریسڈ پیپل ہیں وہ ان کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم واپس اپنے راستے پر، ہم بھی کچھ ہیں۔ شکریہ زبیر ریشی۔ اب ہم مدعو کرتے ہیں باسط اشرف کی طرف۔ تو باسط ہمیں بتائیے سوشل میڈیا کے ذریعے سماج پر کون کون سے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ باسط اشرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں فیضان قیوم صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس سوال کے جواب دینے کے قابل سمجھا۔ تو سب سے پہلی بات، سوشل میڈیا کے جو ہے منفی اثرات
पड़े हैं सोसाइटी पे, तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है टीनेजर्स के बारे में। जो ये टीनेजर्स है वो कौन है? टीनेजर्स ये वो शख्सियत है जो इस नेशन के बिल्डर्स है, जो एक नेशन को बनाते हैं। तो दूसरी बात टीनेजर्स की, ये टीनेज क्या है? टीनेज एक ऐसी एज है जिसमें एक इंसान बिगड़ भी सकता है और अच्छा भी बन सकता है। तो यहाँ पर बात हो रही है सोशल मीडिया की। जो ये सोशल मीडिया है अबाउट, जैसा कि मेरे दोस्त जुबैर साहब ने अभी सोशल मीडिया के बारे में कुछ बोला, उन्होंने बोला अबाउट 9.1 बिलियन पीपल जो है वो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बताता चलूं, अगर हम 9.1 बिलियन का हाफ निकालें, 50% जो है वो इसकी तरफ एडिक्टेड है, सोशल मीडिया की तरफ एडिक्टेड है, वो सिर्फ सोशल मीडिया ही को ही यूज करते हैं। उनमें से 4.8% जो है, 4.8 बिलियन पीपल जो है वो टीनेजर्स है। तो आप देख सकते हैं जो ये टीनेजर्स है वो कैसे इसकी तरफ एडिक्टेड होते जा रहे हैं। अगर इसको इन 1999 अगर सोशल मीडिया को किसी पर्पस के लिए बनाया गया था, तो हम क्यों नहीं इसको उस पर्पस के लिए यूज करते हैं? अगर इसको फॉर द एजुकेशन पर्पस के लिए यूज किया गया था, बनाया गया था, तो हम इसको क्यों नहीं कर रहे फॉर द एजुकेशन पर्पस? हम इससे वो काम कर रहे हैं जो हमारे जो गैर मुनासिब है, जो हमारे समाज ने हमको मना किया ये सब करने के लिए। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी आ गई है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उनको चलाना बहुत ज्यादा, जैसे कि शरीयत ने भी उन्हें मना किया उनको यूज करने के लिए। तो बात हो रही थी टीनेजर्स की। जो ये टीनेजर्स है ये तो ग्रूमिंग बर्ड्स है, ये तो नेशनल बिल्डर्स है, फिर ये क्यों ये यूज कर रहे हैं? फिर ये घंटू, अगर इनको माँ बाप ने फोन दिया है किसी पर्पस के लिए, अगर इनको किसी पर्पस के लिए फोन दिया गया है, तो ये क्यों नहीं कर रहे इसके लिए इसको इस्तेमाल? तो ये थी कुछ मनफी असरात। शुक्रिया बासित अशरफ। फिर से मदऊ करते हैं हम जुबैर ऋषि की तरफ। जुबैर, सोशल मीडिया के जरिए रिश्तों पर क्या असरात मुरतब हुए हैं? जुबैर ऋषि। शुक्रिया फैजान सर। इस सवाल का जवाब मैं अपने कुछ कॉमन एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मसलन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रिश्तों पर ये दोनों असरात पड़े हैं। इससे हमारे रिश्ते क्लोज भी आए हैं और बहुत हद तक दूर भी जा चुके हैं। मसलन हम घर बैठे अपने रिश्तेदारों के साथ बातें कर रहे हैं, हम उनके हाल चाल पूछ रहे हैं। यह है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। एक नेगेटिव इम्पैक्ट यह है इसका, जब भी हम घर आते हैं हम अपना फोन लेकर कमरे में जाते हैं और घंटों तक सोशल मीडिया यूज करते हैं। ना अपने माँ बाप से कोई बात, ना अपने बहन भाई से कोई बात, ना अपनी फैमिली में कोई बात करते हैं। रिश्तों पर यह भी असर इससे पड़ा है। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हम रिश्तेदारों का हाल घर बैठे ही जान सकते हैं। अब हमें घंटों सफर करके अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना नहीं पड़ता और वहां घंटे बैठकर उनका हाल चाल हमें नहीं जाना पड़ता। ये सब अब घर बैठे ही कर रहे हैं। मगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ रहा है कि ना अब हम रिश्तेदारों के साथ मिल रहे हैं, बस सोशल मीडिया पर हाल चाल पूछ रहे हैं, उनके घर नहीं जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हमें यह भी मिलता है कि रिश्तेदार अगर नाराज भी हो तो वो सोशल मीडिया पर हमें उस तरीके से अपने जज्बात हमें उस तरीके से बता नहीं पाते हैं जैसा कि हम फेस टू फेस उनके साथ बातचीत कर पाते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट सोशल मीडिया के रिश्तों पर बहुत सारे पड़ रहे हैं। शुक्रिया जुबैर ऋषि। अब फिर से रुख करते हैं हम बासित अशरफ की तरफ। बासित, इंफॉर्मेशन के फैलाव में सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है? बासित अशरफ। तो नाजरीन देखिए, जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, इसमें कुछ एक से दो पॉइंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको समझना लाजमी है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये पॉइंट्स क्या है। पहला है मीडिया। जो ये मीडिया है ये असल में क्या है? मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए किसी बात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में मदद फराम हो। यानी कि मीडिया हमें मदद फराम करता है किसी बात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो है वो है इंफॉर्मेशन के बारे में। जो ये इंफॉर्मेशन है ये असल में क्या है? इंफॉर्मेशन हम उस बात को कहेंगे जो हमें किसी तक पहुंचानी हो और वो अब तक उस बात से महरूम हो।
वो अब तक इस बात से बाखबर हो, वो अब तक उस बात को नहीं जानता हो। तो सोशल मीडिया के बारे में एक और पॉइंट आता है कि मैं आपको बताता चलूं कि बिफोर 1999 जब सोशल मीडिया वजूद में नहीं था तो क्या होता था, न्यूज के साथ क्या होता था। जो ये न्यूज चैनल वाले थे वो न्यूज के साथ क्या करते थे, तो उस जमाने में क्या होता था, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बिल्डर या कोई भी बड़ा आदमी हो, अगर वो कोई ऐलान करता था, सपोज प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐलान कर दिया, तो वो अगर उसने वो सुबह के 9 बजे उसको टेलीकास्ट किया, रिकॉर्ड किया था, कोई ऐलान किया था सुबह के 9 बजे, तो वो शाम के 9 बजे आता था। तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेता था उस वक्त। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पर है उस वक्त का, इन दी एंशिएंट क्या होता था कि कुछ गिनी चुनी न्यूज को ही ब्रॉडकास्ट किया जाता था, जो मतलब कि किसी बिल्डर को या किसी और को कोई न्यूज उस पर डालनी हो, बस वही, और कोई इंपॉर्टेंट हो, मतलब कि किसी सोशल की हो, मतलब कि किसी इंसान की हो, तो उसमें बहुत ज्यादा कटौती की जाती थी। तो ये थी उस वक्त लैकनेस ऑफ न्यूज। तो अब बात करते हैं आफ्टर 1999 जब मीडिया जब वो वजूद में आया, तो तब क्या हुआ। एक तो न्यूज जो थी, एक तो वो जल्द आई और कोई फेक न्यूज नहीं आई, एक तो जल्द, और कोई कटौती भी नहीं होती है आजकल न्यूज़ में। अगर आज हम देखें, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कि हमें आज ही पता चल जाता है कि कल क्या होने वाला है। सपोज मैं बताता हूँ वेदर के बारे में, जैसा कि वेदर, मौसम के बारे में हमें आज ही पता चल जाता है कि कल क्या बारिश होगी या फिर धूप होगी। तो ये थी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये थी मतलब कि कितनी तरक्की कर ली है एक इंसान ने। इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है न्यूज के बारे में। अब क्या न्यूज में आती है, एक तो ये क्विक है और फेक भी नहीं है, अब कोई कटौती भी नहीं होती है न्यूज में। और साथ ही साथ ये भी होता है न्यूज में, अगर किसी को कोई मतलब कि किसी मोहल्ले में या फिर किसी गांव में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो उन्हें किसी न्यूज चैनल को नहीं बुलाना पड़ता है, कॉस्ट कुछ भरना नहीं पड़ता है, बस फेसबुक पे डाला और बस दूसरे दिन से काम शुरू। तो ये कुछ थिंग्स है सोशल मीडिया के बारे में जो मैंने आपको बताई। शुक्रिया आप दोनों का। मैं अपने मेहमानों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए इस डिबेट को यहीं पे इख्तिताम करते हैं, इस वादे के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात, अगर अल्लाह ने बख्शे जिंदगी के कुछ और लम्हा। तब तक के लिए आपका, मेरा, हम सब का अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।